योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar, good morning. Myself, Dr. Yogesh Parekh, in charge University Librarian of Gujarat University. First of all, I congratulate the dynamic director of HRDC Gujarat University, Dr. Jagdish Joshi sir, Dr. C.G. Brahmbar sir, Priti Mayani madam, and their entire academic and technical team to introduce such a ICT-based initiative for the faculty members, for the research scholars in this COVID-19 pandemic. I also welcome all the participants join with us from the different area, different city, different state of the nations. Let us start my presentation. I discuss about the electronic thesis dissertation repository available at state level, national level, and a global level, research ethics, fair use, UGC policy of research integrity. The information covered in my sessions about the Sodh Ganga, about the PQDT, and other electronic repository of thesis and dissertations. Research ethics, concept and introductions. Three parts, three portions of the research misconduct: falsification, fabrications, and plagiarisms. UGC policy on promotion of academic integrity and prevention of plagiarisms in higher educational institutions regulations 2018. Provision of fair use in academics. Friends, research and innovation involved in scientific efforts in a search of truth, creation of new knowledge, contributing to socio-economic benefits for global good. And we all are know in today eras of information and communication technology and research and development, research integrity, research ethics, misconduct of research, falsification, fabrications, plagiarisms are most important factor in the growth of research and development. Morality is the most important thing in the all area of human life. And in a higher education, MHRD in UGC took several initiatives for quality of research and plagiarisms like Sodh Ganga project, Sodh Shuddhi project, 2 credit course compulsory at the PhD level. And in the year of 2018, UGC published policy about promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in a higher educational institution regulation 2018. So that all the concerned authority, faculty members, administrative staff, researchers, students of the academic institutions, universities, research and development units are must aware about the various provisions given in the policy during the teaching, learning and research. हम सब जो शिक्षा एवं अनुसंधान संशोधन के क्षेत्र में कार्यरत है, सभी को यूजीसी की शोध शुद्धि पॉलिसी, प्लेगियरिज्म डिटेक्शन टूल्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो जो प्रोविजन दिए गए हैं, पॉलिसी की जो जो ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसी के जो जो प्रोविजंस है, उन सभी के बारे में जानना नेसेसरी है, अनिवार्य है. About the Sodh Ganga, PQDT, electronic repository of thesis and dissertations. Need of Sodh Ganga. Why? क्यों शोध गंगा की नीड एस्टेब्लिश हुई, क्यों शोध गंगा रिक्वायरमेंट हुआ? यूजीसी ने एक स्टेप्स लिया शोध गंगा प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का इम्प्लीमेंट की ओर से.
because poor visibility of thesis. In India, many universities not digitize their thesis so that research public not accessible at a publicly level. Plagiarisms are most important factor for the need of Shodh Ganga. Limited access and most important thing for a need of Shodh Ganga is a quality in a research. What benefits research community gets from the शोध गंगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक यूजर्स की, एक रिसर्चर्स की, एक गाइड की, एक इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई होती है। शोध गंगा में जब शोध गंगा की गाइडलाइन और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार रिसर्चर्स अपना रिसर्च करता है, प्लेगरिज्म्स में अपना थीसिस सबमिट करता है, चेक करवाता है, उसके बाद शोध गंगा में अपलोडिंग, ये सारी प्रोसेस एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनलाइज करती है हर एक संस्था के लिए, हर एक कॉलेजेस के लिए, हर एक रिसर्चर्स के लिए, हर एक गाइड के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो शोध गंगा के स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, कंट्रीब्यूशंस, फीडबैक, हॉनर्स एंड अवार्ड एंड द फ्यूचर स्कोप। जो रिसर्च आपका एस्टेब्लिश हो गया, वंस इट इज अपलोड इन शोध गंगा, तो क्या होगा कि फ्यूचर स्कोप रहेगा। वो रिसर्च जहां पे रुका है वहां से फर्दर आगे जो रिसर्च करना है वो रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द वन स्क्रीनशॉट ऑफ शोध गंगा URL, shodhganga.implement.ac.in. The present scenario of Shodh Ganga: total number of theses as per the record of 15th May 2020, 2,70,000 plus theses on a Shodh Ganga. Total number of universities signed MOU for Shodh Ganga, 500 plus. Total number of university contributed in a Shodh Ganga, 450 plus university contributed in a Shodh Ganga. This is the one screenshot of present scenario of Shodh Ganga, 2,70,000 plus thesis. इनकेट, आप सब इनकेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकेट इज द बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बुक्स, थीसिस एंड सीरियल। इनकेट, online union catalog of Indian university that contain bibliographical records of book, thesis and serials contributed by participating universities in all disciplines like computer science, philosophy, religion, social science, technology, arts, literature, history and science. Currently, INCAT has more than 95.93 lakhs unique bibliographical records of book, thesis and serial database, out of which book database has 95,23,971 unique records of 119 Indian university. In a thesis database side has 4,39,116 unique PhD records of 443 universities. In a serial database point of view, 35,234 records of 229 institutions. तो whenever researchers जो है वो आपके मार्गदर्शन के नीचे, या आप खुद रिसर्च कर रहे हो, या आप कुछ आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, या आपके टीचिंग और लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सी बुक्स, सीरियल्स और थीसिस एज वेल एज ई वीडियोज भी है, वो कौन सी भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अवेलेबल है, तो आप इनकेट के माध्यम से जान सकते हो। मेन इसका इंपॉर्टेंट थिंग है, इनकेट इज कनेक्ट विद द शोध गंगा। तो यहाँ जो थीसिस का जो रिकॉर्ड्स है, थीसिस का रिकॉर्ड से पर्टिकुलरली आप जो थीसिस का रिकॉर्ड है वो इनकेट में फुल टेक्स्ट एज वेल एज बिब्लियोग्राफिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शो होगा, तो आप वहीं से डायरेक्टली आप फुल टेक्स्ट पे जा सकते हो। दिस इज अ वन स्क्रीनशॉट ऑफ इनकेट बुक्स रिकॉर्ड, हियर बुक्स रिकॉर्ड, थीसिस रिकॉर्ड, सीरियल रिकॉर्ड्स, user registration on Shodh Ganga. This is the one facility for the researchers for their registrations on Shodh Ganga.
while online submission of electronic thesis by researchers, supervisor or university representative. Under university mandate is preferred, the implement encourage individual researchers to submit their thesis and dissertation either online or either offline through the email or CD or DVD on voluntary basis till university adopt and implement the UGC notification 2016. The researchers individually can registration on SodhGanga. The facility also available on SodhGanga URL. After the awarded of notifications, researchers can individually uploaded their own thesis on SodhGanga with the registration. तो ये सारी फैसिलिटी जो रिसर्चर्स के लिए है, वो खुद भी उनका विश्वविद्यालय है या उनकी कॉलेज है या उनका इंस्टीट्यूट है जिन्होंने SodhGanga के साथ MOU साइन किया है, तो वो तो आफ्टर अवार्ड ऑफ द डिग्री वो थीसिस ऑनलाइन वहां पे सबमिट करेंगे, मेटाडेटा बनाएंगे, मेटाडेटा के बाद वो सबमिट करेंगे और नेसेसरी SodhGanga पे जो अपलोडिंग की प्रोसेस होगा. पर यूजर ऑल्सो कैन रजिस्ट्रेशन ऑन SodhGanga इंडिविजुअली. ये प्रोविजन भी SodhGanga में दिया गया है. तो एज ए रिसर्चर्स, एज ए गाइड, एज ए टीचिंग कम्युनिटी, एज ए एकेडमिक कम्युनिटी, हम सभी को ये SodhGanga जो बेनिफिट्स है उसके संदर्भ में जानना भी खूब जरूरी है. अदर इंडियन इटिडीज ऑफ रिपोजिटरी ऑफ SodhGanga. SodhGanga के साथ सिमिलर जो रिपोजिटरी है जो SodhGanga के ड्यूरिंग और SodhGanga के पहले भी एस्टेब्लिश हुई है, तो वहां उनके थीसिस भी सारे ऑनलाइन है. वेल स्ट्रक्चर, काफी अच्छे स्ट्रक्चर में उनको अपलोड किया गया हुआ है. तो आप अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप करंट रिसर्च कौन सा चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन की रिपोजिटरी आपको देखना है, आपको इवोल्यूट करना है, आपको स्टडी करना है, तो आप देख सकते हो. दिस इज द अदर इंडियन इटिडीज एंड रिपोजिटरी ऑफ SodhGanga एट इम्प्लीमेंट सेंटर लाइक www.mguthesis.org. महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो थीसिस है वो ऑनलाइन जो रखे गए, उनका ये URL से etd.ncsi.iisc.arnet.in, e-thesis of Saurashtra University.edu, www.library.iissarnet.in and many more. तो ये सारी कुछ रिपोजिटरी का यहाँ पे आपको मैंने बताया है. ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम एकेडमिक फील्ड में हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम हमारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, हम रिसर्च करवा रहे हैं, तो हमको ये रिपोजिटरी के बारे में भी जानना, उससे इन्फॉर्म्ड होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है. मैंने जो अभी बात की वो जो नेशनल लेवल पे, हमारे इंडिया लेवल पे जो रिपोजिटरी है उनके बारे में मैंने बात की. नाउ आई डिस्कस अबाउट द वन ओपन PQDT एट ए ग्लोबल लेवल, ProQuest PQDT ओपन. तो ये PQDT ओपन है जो इज ओपन फॉर ऑल. उसमें जो ग्लोबली लेवल पे जो रिसर्च हुआ है, जिन जिन यूनिवर्सिटी ने एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटाइजेशन ProQuest के साथ कुछ मेमोरेंडम साइन किया हुआ है, वो साइन के हिसाब से उनके थीसिस जो PQDT में अवेलेबल है और एज पर द कॉपीराइट, एज पर द डिजिटल कॉपीराइट जो मेमोरेंडम है उसके बेसिस पे आफ्टर द सर्टेन ईयर्स और विद द परमिशन ऑफ नेसेसरी इंस्टीट्यूट जो PQDT ने ओपन रखा हुआ है, ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है, वो सारे थीसिस और डिजर्टेशंस है, वो एवरी रिसर्चर्स, एवरी एकेडमिक कम्युनिटी वो PQDT ओपन से फुल टेक्स्ट एज पर द SodhGanga जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज फुल टेक्स्ट वो ओपन एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज द URL of PQDT open. This is the one screenshot. Suppose I can search with the keyword of higher education. So result is total number of 7,202 results I found from the PQDT database. This is the facility. You can click here. आप abstract को read कर सकते हो. If you want to full text, you can click on full text. तो आप पूरा full text thesis access कर सकते हो. Now I discuss about the research ethics. Here you can see the word of research ethics. So the two concepts, one is research and second is ethics. Research means research, creating a new knowledge for the research, etc. And ethics means morality, honesty. So research ethics basically concern with the responsibility of researchers to be honest and respectful
to all individuals who are affected by the research studies of the reports of the studies results. Research ethics provide guidelines for the responsible conduct of research. In addition, it educate and the monitor to all conducting research to ensure high ethical standard. So रिसर्च एरिया में जो भी कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट, जो भी एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो काम प्रॉपरली इथिकल जो स्टैंडर्ड्स है, जो रिसर्च इथिक्स के जो कोड है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें प्रॉपर एज पर द नॉर्म्स, एज पर द पॉलिसी रिसर्च हो रहा है. कहीं कट कॉपी और पेस्ट नहीं हो रहा, कहीं मिसकंडक्ट नहीं हो रहा. ये सारी बातें रिसर्च इथिक्स के साथ जुड़ी है. हमको एज ए रिसर्चर्स, एज एकेडमिशियन, हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे इंडिविजुअल पर्पस से, एज ए कॉमर्शियल लेवल पर्पस से वो है, तो हम किसी का कंटेंट जो हम हमारे इंडिविजुअल स्कोप के लिए, हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और उनको हम प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं रिसर्च मिसकंडक्ट के दायरे में आता है. और कहीं ना कहीं वो सारी बातें रिसर्च इथिक्स के साथ वो को रिलेटेड है, वो संलग्न है. सो रिसर्च इथिक्स क्या कवर करते हैं? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंपोनेंट बताए हैं कि so many components are covered. Is a broad terminology of research. Research ethics cover honesty, integrity, objectivity, respect for intellectual property, responsible publication to publish, mentoring, respect your colleagues, human subject protection, legality, and many more. Now discuss about the research misconduct. So research misconduct mainly includes three aspects of research integrity. One is fabrications, second is falsifications, and third one is plagiarisms. What is falsifications? The falsification is the changing or omission of research result data to support claims, hypotheses, other data, etc. Falsification can include the manipulations of research and instrumentations, materials or process, manipulations of images or representations in a manner that distort the data or reads too much between the line can also be considered as a falsifications. Fabrications. Fabrication is the construction and or addition of data, observation or characterization that never occurred in the gathering of data or running of experiment. Fabrication can occur when filling out the reset of experiment runs. For example, claims about the results need to be made on a complete data sets, as is normally assumed, where claims made based on the incomplete or assumed results is a form of fabrications. Main thing, plagiarisms. Plagiarism, perhaps the most common forms of research misconduct. Researchers must be aware to cite all the sources and take careful notes using or representing the work of others as your own work constitute plagiarisms, even if committed unintentionally. When reviewing privileged information, such as when reviewing grants or journals article manuscript for peer review, researchers must recognize that what they are reading cannot be used for their own purpose because it cannot be cited until the work is published or publicly available. Various definitions and concept of the plagiarisms. The plagiarisms, the act of presenting another works or idea as your own. Plagiarism is the act of stealing someone else's work and attempting to pass it off as your own. This can apply anything from terms of papers, from terms of photographs, from terms of songs, even ideas. According to Merriam-Webster dictionary, to plagiarize, to steal and pass off the ideas or words of another as one's own. To commit literary theft, to present as a new and original idea or a product derived from an existing sources. What plagiarism includes?
plagiarism includes someone else exact word without using quotation mark or a citations. Using someone else ideas without using a citation even if the source in the bibliography. Using rearranged word from a source without a citations. Why plagiarism made easy? Plagiarism क्यों easy हो गया है? Because information and communication technology, ICT, information and communication technology played a huge role in an increase of plagiarisms. ये पिक्चर्स आपको बता रहा है, पहले क्या था, हम लाइब्रेरी में गए, या जहां ये मैन्यूस्क्रिप्ट या जहां डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वहां से हमने लिख लिया. वो एक कॉपी पेस्ट का एग्जांपल था, वो मैंने आपको यहाँ बताया. द अनदर पिक्चर्स, ये कंप्यूटर से सीधा उसमें से आपने कॉपी पेस्ट करके आपने लिख लिया. द इंटरनेट हैज मेड इट इजियर फॉर एवरीवन टू प्लेगियराइज. दिस इज द अनदर इमेज. टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड हो रही है. वर्ड में से इजीली कन्वर्ट हो सकता है, पीडीएफ में से इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है. तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है उनके बेनिफिट्स है. साथ में वही टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं पे प्लेगियरिज्म को भी कहीं ना कहीं पे वो उनको बढ़ावा दिया है. उनको कहीं ना कहीं पे एक सपोर्टिव रोल में ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं प्लेगियरिज्म के जो इंक्रीज होने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है. की फैक्टर्स ऑफ द प्लेगियरिज्म्स. मैं इसके बारे में चर्चा डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं प्लेगियरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है. अगर हम हमारे घर की बात करें, हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो हम वो उनको अगर उनके स्कूल से कोई असाइनमेंट दे रहे तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनको बोलते हैं कि आप गूगल से सर्च कर लो. वो या वो खुद भी, अभी सभी के घर में स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, आईपैड है, तो वो क्या करेंगे, टाइम नहीं है तो बच्चों को टैबलेट्स दे दिया, आईपैड दे दिया, तो वो गूगल में सर्च करेंगे. तो ये माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट एज ए इन ए चाइल्डहुड जब वहां से डेवलप हो रहा है. और वही जो चिल्ड्रन है, वही जो मतलब जो स्कूल एजुकेशन है वही से स्टार्ट होता है. देन प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इवन रिसर्च लेवल. तो एक वो माइंडसेट डेवलप वहीं से होता है कि कॉपी पेस्ट करना है. तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि प्लेगियरिज्म की शुरुआत वहीं से होती है. अगर वहीं से हम एक हैबिचुअल, एक उनको एक हैबिट के बारे में बताएंगे कि आप रीडिंग करो, आप सोर्स को पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, हम उनको रीडिंग मटेरियल कुछ प्रोवाइड करें, तो एक इथिकल प्रैक्टिस इन ए चाइल्डहुड वहीं से स्टार्ट होगी, प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट होगी. तो वो एज ए रिसर्च एजुकेशन तक वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी. Now discussing key factors of plagiarism. The main factors, the problems in a selection of topic or a title. क्या होता है जनरलाइज इन ए यूनिवर्सिटी, इन एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, पीएचडी की एंट्रेंस की एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है. जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड या विद इन ए मंथ, यूनिवर्सिटी या जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूट है वो डिक्लेयर करता है आरडीसी. और विद इन अ मंथ स्टूडेंट्स को अपना टॉपिक फाइनलाइज करना है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स जनरली शोध गंगा जनरली सब जानते हैं, ऐसी काफ़ी रिपोजिटरी के बारे में आज स्टूडेंट्स अवेयर है. तो वहीं से क्या करेंगे, कोई टॉपिक सबको सिलेक्ट करते हैं. मैं ये नहीं पता था कि सारे स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं, पर जो लोग ये प्रीवियस रिसर्च क्या हुआ है वो देखने के लिए भी शोध गंगा की साइट में गए या कोई अदर रिपोजिटरी में गए, तो वहां से वो क्या करेंगे, पहले वो टाइटल फाइनलाइज करेंगे. अब सपोज किसी ने एक टाइटल किसी रिसर्चर्स को अच्छा लगा और वहाँ गुजरात है और उन्होंने राजस्थान ले लिया, तो क्या होगा, वहीं से माइंड से स्टार्ट हुआ. फिर वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होंगे, गुजरात की जगह राजस्थान हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 चैप्टर्स. यानी वो पूरा रिसर्च का जो उनका जो टाइम पीरियड है 3 साल 5 साल तक, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च की कुछ कंटेंट वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा होगा कि मैं हमारे मतलब मेरे थीसिस में उसको अप्लाई करूं. तो ये प्लेगियरिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं आप जब का सिलेक्शन ऑफ आपका टॉपिक है वहीं से भी स्टार्ट होता है, टाइटल से भी स्टार्ट होता है. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. 3 साल है या 5 साल है, आपको डेली अपना काम 2 या 3 घंटे में
मतलब 24 आवर्स है, उसमें से आप 2 या 4-3 घंटे निकाल लो, प्रॉपरली उसको आपको अपने रिसर्च के लिए देना। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो क्या होगा, लास्टली सबमिशन के टाइम पे क्या करेंगे, जहां से कट कॉपी पेस्ट करके हम हमारा रिसर्च सबमिट कर देंगे। पुअर नॉलेज अबाउट रेफरेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी मार्गदर्शक आपको जो गाइड करते हैं, जो मेथड से रेफरेंस की, वो मेथड से आपको अप्रोप्रिएट उसको रेफरेंस सोर्स को उसको अप्रोप्रिएट एक्नॉलेज करना है। ये फैक्टर्स है प्लेगियरिज्म का। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने आगे बात की, आईटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी में। कई बार जो फेल होने का डर होता है ना, वो भी प्लेगियरिज्म के लिए एक फैक्टर्स है। फेल होने के डर से रिसर्चर्स क्या करता है, कॉपी और पेस्ट में वो अपना माइंडसेट कहीं ना कहीं वो अप्लाई करता है। लेजीनेस, वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ी बाबत है। लेजीनेस रहे, टाइम प्रॉपर टाइम पे अपना रिसर्च नहीं किया, तो प्लेगियरिज्म आखिर में कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट के लिए कहीं ना कहीं वो अप्लाई होने के चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, प्योर डॉक्यूमेंटेशन पर। अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, सपोज आपने कोई लाइब्रेरी का विजिट किया या जैसे कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेस किए, उसी टाइम पे रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए, कहीं लाइब्रेरी में गए तो उनकी बुक्स है, वो बुक्स का पहला पेज और जो कंटेंट उन्होंने कॉपी किया यानी जेरोक्सिंग किया है, तो उसका जेरोक्स बना के एक फाइल बना देना है, चैप्टर 1 और नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो चैप्टर 1 उसकी बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस, चैप्टर 2। तो एट द एंड ऑफ सबमिशन जब अपना थीसिस फाइनलाइज करोगे, तब क्या होगा, आपने अपने रिसर्च के दरमियान जितने भी रिसोर्सेज जो भी लाइब्रेरी और ऑनलाइन एक्सेस किए हैं, उनका डिटेल आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको प्रॉपर एक्नोलेज कर सकोगे। अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपने ये काम नहीं किया या आप फॉरगेट, आप भूल गए उसको, तब क्या होगा, वो कंटेंट आपके रिसर्च में होगा, कुछ ऑनलाइन कंटेंट कहीं ना कहीं से फैच होगा, अगर रेफरेंस नहीं दिया तो क्या होगा, उसको प्लेगियरिज्म कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा सकता है। अगर उसको आपने प्रॉपरली एक्नोलेज किया, आपके पास वो एक्सेस का लॉग अवेलेबल है कि मैंने सो एंड सो डेट पे मैंने शोध गंगा एक्सेस किया था और उनका ये लॉग है, लॉग की ये डेट है जो मैंने रेफरेंस में रखी, तो कहीं ना कहीं ये प्लेगियरिज्म में से एक्सक्लूड कर सकता है। तो ये सारा ये पुअर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ये रिसर्चर्स के लिए कहीं ना कहीं प्लेगियरिज्म का एक फैक्टर्स है। और जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते हैं, तो नो बडी विल फाइंड आउट, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या है कि सॉफ्टवेयर आर वेरी मतलब जो प्रोटोकॉल्स या प्रॉपर डेटाबेस के साथ उनका टाइप्स होता है। व्हेनेवर मैंने 1500 से ज़्यादा थीसिस के डॉक्यूमेंट है मैंने अपलोड किए हैं, कई बार विद इन सेकंड जैसे अपलोड किया ना, तो वो डेटाबेस के साथ फैच करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो आपने कहीं से कट कॉपी और पेस्ट किया है तो वो रिपोजिटरी कहीं ना कहीं फैच करके ले आएगी और नो बडी विल फाइंड आउट। के कंसर्न में बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमको ईश्वर से यानी भगवान, नेचर ऑफ लॉ से भी कहीं ना कहीं हमको डरना है कि हमको होनेस्टी से काम करना है, हमारा वर्क प्रॉपरली करना है, हमको इथिक्स के जितने भी कोड है वो हमारे रिसर्च में अप्लाई करने हैं। टाइप्स ऑफ प्लेगियरिज्म्स, so complete plagiarisms, a piece of work copied entirely from one or more sources, copy and paste, partially cut and paste from one and more source। कंप्लीट प्लेगियरिज्म में क्या होता है, पूरा थीसिस आपने एंटायरली कॉपी कर लिया एक और ज्यादा सोर्स में से और अपना काम रिसर्च का कंप्लीट कर दिया। कट और कॉपी, उसमें क्या पार्सली कट और पेस्ट होता है, तो ये उसके टाइप्स है। वर्ड स्विच, if you copy a sentence or paragraph into your assignment and change it a few words, it will still be considered to be a plagiarism। आपने कुछ पैराग्राफ या कुछ सेंटेंस ले लिया और अपने ऑन वर्ड्स में उसको आपने चेंजेस कर दिया और अप्लाई किया, वो भी प्लेगियरिज्म कंसिडर किया जा सकता है। सेल्फ प्लेगियरिज्म when you are reuse your previously written work or data in a new assignment and do not reference it appropriately। ये कोविड-19 के ड्यूरिंग में आई थिंक अप्रैल 20 अप्रैल आई थिंक मैं आगे बताऊंगा, 20 अप्रैल को ये पॉलिसी आई है, यूजीसी ने डिक्लेयर किया है कि सेल्फ प्लेगियरिज्म को भी अगर आप अपना जो प्रीवियस रिसर्च वर्क है उसको रीयूज करते, रीप्रोड्यूस करते हो और उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली उसको आप रेफरेंस नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो भी
considered to be a plagiarisms. Plagiarisms की definitions, उनकी terminology, उनकी व्याख्या में आ जाता है. Another way we can also know about the type of plagiarism, intention, जो उनको पता ही होता है कि मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ. और दूसरा होता है अनइंटेंशन, जिसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ एज माय एक्सपीरियंस. मैंने जो डॉक्यूमेंट चेक किए इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. दो फ्रेंड्स होते हैं, इज अ वेरी गुड फ्रेंड्स, वो साथ में रिसर्च करते हैं. वन इज एक जो है वो इज अ क्वालिटी, वो प्योर रिसर्च कर रहा है. अनदर वन इज उसे कंपेयर टू, उनके पास में नॉलेज कम है, पर एज ए फ्रेंडशिप्स वो डेटा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं. और फर्स्ट जो स्टूडेंट्स है जो कंपेयर टू जो जिनका नॉलेज ज्यादा है वो पहले सबमिट, जिनका नॉलेज ज्यादा है उनके कंपेयर में जो लेस नॉलेज है उन्हीं के पास से डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना थीसिस सबमिट कर देते हैं. देन उसके बाद में उसका फ्रेंड सबमिट करता है. तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में भी, पास्ट में ऐसे केसेस भी आए कि वो कहीं ना कहीं प्लेगियरिज्म के दायरे में आ सकता है कि मतलब उसने दोनों का टॉपिक कहीं ना कहीं सिमिलर है, कुछ कंसेप्ट के रिगार्डिंग है. तो डेटा शेयरिंग में भी कहीं ना कहीं मतलब कोई इंटेंशन नहीं था, पर एज ए फेथ, एज ए गुड फेथ उन्होंने अपने फ्रेंड्स को डिटेल शेयर किया हो और वो अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं प्लेगियरिज्म कंसिडर हो सकता है, जिनका कोई इंटेंशन नहीं होता. पर ये सारी चीज में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेगियरिज्म से अगर आपको एक्सक्लूड भी होना है, अगर प्लेगियरिज्म से आपको प्रिजर्व भी होना है, तो क्या करना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा. हाउ टू अवॉइड प्लेगियरिज्म्स, यहाँ अवॉइड मेंशन होना रह गया, मतलब जो टाइटल है उसमें हाउ टू अवॉइड प्लेगियरिज्म्स. अवॉइडेड प्लेगियरिज्म इज क्वाइट सिंपल. द बेस्ट मेथड फॉर अवॉइडिंग इट इज सो सिंपल टू बी होनेस्ट. हम जो भी वर्क कर रहे हैं हमको होनेस्टली काम करना है, हमको प्रॉपर जो रेफरेंस है उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है, उसको प्रॉपरली उसको साइटेशंस देना है. तो हम जो भी काम करें उसको प्रॉपरली, हमको होनेस्टली हमको हमारा वर्क करना है. व्हेन यू हैव यूज्ड अ सोर्स इन अ पेपर, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. आपको उसको प्रॉपरली क्रेडिट करना है, आपको उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है. एक्नॉलेज द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क यू हैव यूज्ड, ये है ना. आप मेन सोर्स तक जाइए. आप अगर सपोज कोई थीसिस से आप कंटेंट ले रहे हो या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो वहां रेफरेंसेस में जो बुक्स, थीसिस या सीरियल कंट्रोल या जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेस जो बिब्लियोग्राफी में अवेलेबल है, वो मेन सोर्स तक आपको जाना है. यूज प्रॉपर रेफरेंस मेथड एज पर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर गाइडेंस लाइक एपीए, एमएलए, चिकागो मैनुअल, हार्वर्ड स्टाइल, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन 2000 एक्सेट्रा. आपकी यूनिवर्सिटी ने, आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके गाइड ने जो भी रेफरेंस मेथड आपके रिसर्च वर्क के ड्यूरिंग अप्लाई किए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एपीए हो, चाहे वो चिकागो हो, आपको रेफरेंस मेथड के हिसाब से जो भी कंटेंट आपने प्रिंटेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सेस किया है ऑफ योर रिसर्च वर्क, उसको आपको प्रॉपरली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड बिब्लियोग्राफी में उसको प्रॉपरली मेंशन करना है, प्रॉपरली क्रेडिट देना है, प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है. Few good rules to avoid plagiarism are, friends, take sufficient time to complete your work. आप अपना जो टाइम है, अपना रिसर्च वर्क है, उसके लिए आप सफिशिएंट टाइम दो. मैंने आगे भी बताया हमारे पास 24 आवर्स है, तो एवरी डे आपको 2 या 4 घंटे अपने प्लेगियरिज्म्स के संदर्भ में, अपने रिसर्च वर्क के संदर्भ में, अपने रिसर्च इथिक के संदर्भ में. मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ये प्लेगियरिज्म्स, ये रिसर्च इथिक्स, ये कहीं ना कहीं आपको 3 या 5 साल का जो भी आपका जो टाइम पीरियड है, आपको कहीं ना कहीं सुनने में आएगी, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में आएगी. तो अगर आप एवरीडे खुद के रिसर्च वर्क के लिए आप टाइम दोगे, उसको प्रॉपरली एक फाइल मेंटेन करोगे, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, तो कहीं ना कहीं आप प्लेगियरिज्म को अवॉइड कर सकते हो. अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट एंड राइट द न्यू आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स. आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए, उसका स्टडी कीजिए, पर उसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कंसेप्ट को पूरा समझने का कोशिश कीजिए और अपने आइडिया में, अपने नए थॉट्स में उसको आप लिखने का पूरा पूरा अप्रोच कीजिए. आगे बताया कॉपी और पेस्ट को अवॉइड करना है, नहीं करना है कॉपी और पेस्ट. Always use few appropriate and accurate sources if possible.
जो भी सोर्स से अप्लाई कर रहे हो वो एक्यूरेट हो, वो अप्रोप्रिएट हो, और पॉसिबल हो तो मेन सोर्स तक आपको जाना है. Learn how and when to quote and also avoid patchwork. Always cite a new and a doubt or not a common language. Follow the author guidelines according to your subject. Cite reference accurately. Always acknowledge and give sufficient credit to original sources. Avoid writing several articles of the same type and submitting to different journals at the same time. Consult with the translator or native speaker before sending the final proof of the manuscript to the scientific journals or subjective journals. Use anti-plagiarism tool to detect any accidental plagiarism. For example, plagiarism detection software like CrossCheck. Enclose the covering letter to the editor regarding for any overlap unintentionally. These are the few good rules of plagiarisms. What are the consequences of plagiarisms? क्या हो सकता है अगर plagiarisms जो पॉलिसी में जो प्रोविजंस है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी जो प्रोविजन दिए गए हैं, अगर प्लेगरिज्म डिटेक्ट होता है और उसको जो भी कमिटीज है उसको फाइनलाइज करते हैं प्लेगरिज्म, क्या हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन आ सकता है, आपका रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकता है, आपका सस्पेंशन आ सकता है, आपको लो ग्रेड किया जा सकता है, आपको गाइडशिप से आपको दूर किया जा सकता है, आपका इंक्रीमेंट स्टॉप किया जा सकता है. ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेगरिज्म है. सो बहुत ही अभी के टाइम पे जब टाइम इतना फास्ट चल रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमको एज अपार्ट हमको हमारे टीचिंग, हमारे लर्निंग, हमारे रिसर्च, सभी फैक्टर्स में, सभी एरिया में हमको कुछ भी कंटेंट हम अगर एक्सेस करते हैं इन अवर ओन एस्पेक्ट, तो हमको उसको प्रॉपरली, जो इंटेलेक्चुअल ऑथर है, जो उसका ओनर है, उसको हमको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है, उसको हमको प्रॉपरली साइटेशंस देना है, उसको हमको प्रॉपरली क्रेडिट करना है. तो ये प्लेगरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. यूज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेशंस ऑफ 2016. 2009 में एक रेगुलेशंस आया था, उसके बाद एमफिल और पीएचडी के लिए मिनिमम अवार्ड के लिए 2016 में उसको अभी फॉलो किया जा रहा है. तो आपको एंटी प्लेगरिज्म में चेक करवाना है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस करना है, कुछ नेसेसरी आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं. अभी तो वो भी आया कि अब यूजीसी कैर में पब्लिश करने हैं. तो ये सारे जो मिनिमम जो रेगुलेशंस है अपार्ट ऑफ द एमफिल और पीएचडी डिग्री आपको फॉलो करना है. ये जो रेगुलेशंस पब्लिश हुआ था इन 2016 जुलाई 5वीं तारीख को. नाउ 2018 31st July 2018, UGC regulations for promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions HEI, जो भारत के शैक्षणिक संस्थान है उनके संदर्भ में जो ये पॉलिसी पब्लिश हुई 31 जुलाई 2018 को, उनके संदर्भ में. और ये पॉलिसी अभी भारत के जितने शैक्षणिक एवं अनुसंधान जो संस्थान है उन सभी को लागू हो रही है. तो उनके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे. What are the objective of promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institutions? In the Gazette of India, this policy serial number 3 is for the objective of promotion of academic integrity and a prevention of plagiarism in higher education institution. As per the policy, the main objective are to create awareness about responsible conduct for research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and a prevention of misconduct, including plagiarism in academic writing among the students, faculty, researchers, and the staff. To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research and thesis and dissertation, promotion of academic integrity and deterrence from the plagiarism. To develop system to detect plagiarisms and a set up mechanism to prevent plagiarisms and a punish student, faculty, researcher or staff of HE committing the act of plagiarism. यहाँ देखो
स्टूडेंट्स आ गए, फैकल्टी आ गए, रिसर्चर्स आ गए, स्टाफ आ गए और एचई के कंसर्न्स में जितने भी अथॉरिटीज है जो ये कंसर्न्स के साथ को रिलेटेड है, वो सभी को ये पॉलिसी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, लागू हो रही है। ड्यूटीज ऑफ एचई: every HE should establish the mechanism as prescribed in this regulation to enhance awareness about responsible conduct of research and academic activities, to promote academic integrity and to prevent plagiarisms. Awareness program and provisions in the policy: instruction to the students, faculty and staff about attributions, sensitization, seminars, awareness programs every semesters. Responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and ethical in education for students, faculty, researchers and staffs. Institute shall include the cardinal principles of academic integrity in the curriculum of undergraduate, UG, postgraduate, master degree, etc. at compulsory coursework module. Compulsory coursework module for master and research scholar and orientation. And refresher course organized for faculty and staff members include elements of responsible conduct of research and publication ethics. ट्रेनिंग फॉर यूजिंग पीडीएस, जो पीडीएस के साथ जो काम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर है, उनके ट्रेनिंग. एस्टैब्लिश फैकल्टी विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेगियरिज्म्स. एनकरेज स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर, स्टाफ टू रजिस्टर ऑन इंटरनेशनल रिसर्चर रजिस्ट्री सिस्टम. सो ये सारा प्रोविजंस उसमें दिया गया कि आप देखो यूजी से लेके रिसर्च वर्क, यानी सारी मतलब जो लेवल है, ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, रिसर्च, मतलब जो, और इवन टीचिंग एंड लर्निंग, ये सारे जो लेवल है हायर एजुकेशन के, एकेडमिक्स के, वो सारे कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं. तो कंटिन्यूस अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, जो पीडीएस कोऑर्डिनेटर है उनको ट्रेनिंग लेनी है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी सभी को एनकरेज करना है कि आप प्रॉपरली एज पर द पॉलिसी अपना टीचिंग, अपना लर्निंग, अपना रिसर्च काम आगे बढ़ाइए. सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेगियरिज्म्स, जो प्रोविजन दिए गए हैं कुछ सिमिलरिटी के संदर्भ में. द सिमिलरिटी चेक्स फॉर प्लेगियरिज्म शैल एक्सक्लूड द फॉलोइंग: all quoted work reproduced with all necessary permission or attributions, all references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement, all generic terms, law, standard symbols and standard equations. Now, the research work carried out by the student, faculty, researchers, staff shall be based on original ideas, which shall include the abstract, summary, hypothesis, observations, result, conclusion, recommendations only, and shall not have any similarity. It shall exclude the common knowledge or co-coincidental terms up to 14 consecutive words. तो ये सारी बातें हैं, ये सारे थिंग्स है, ये सारे प्रोविजंस है सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्लेगियरिज्म्स के संदर्भ में. व्हाट आर द लेवल ऑफ प्लेगियरिज्म्स? पॉलिसी में कौन कौन से लेवल दिए गए प्लेगियरिज्म्स के संदर्भ में? इन अ लेवल 0, सिमिलरिटी अप टू 10%, defined as a minor similarity. In a level 2, similarity above 10 to 40%. Level 2 is similarity above 40 to 60%, and level 3 is similarity above 60%. Various panel provision in higher education institute as per the policy: Departmental Academic Integrity Panel DAIP and Institutional Academic Integrated Panel IAAP. Provision of 3 members: chairman, head of the department, member, senior academician from outside the department, member, person well versed with the anti-plagiarism tools, principles of nature, justice, assess level of plagiarism and recommended penalty, report in 45 days to IAP. These are the provision in a Departmental Academic Integrity Panel DIP. Now, Institutional Academic Integrity Panel IAIP. Provision of 4 members. Chairman is the Pro Vice Chancellor, Dean, Senior Academicians, member of the Senior Academicians other than Chairman, members from the outside HEI, members person well versed with the anti-plagiarism tools, decision making body,
reviewing recommendation of DIP, report to head of HE within 45 days, and final and binding decisions. So these are the provision of panels in HEI. Penalty imposed on the student pursuing studies at the level of masters and research programs and on researchers, faculty or staff. Only after academic misconduct on the part of the individual has been established without doubt, when all avenues of appeal have been executed and individual questions has been provided enough opportunity to defend himself or herself. पूरा एक टाइम पीरियड दिया जा सकता है का प्रोविजंस है उनको डिफेंड करने का खुद को. प्लेगरिज्म्स कहीं ना कहीं कुछ डिटेक्ट होता है और उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, तो ये उनको अपील्स के संदर्भ में उनको पूरा टाइम दिया जा सकता है उनको खुद को डिफेंड करने के लिए. These are the provision of penalty at 2 level thesis and dissertations and academic and research publications. In level 0 up to 10%, no provision in a penalty in a thesis and dissertation level as well as academic and research publications. Level 10 to 40% in a thesis and dissertation level, revise script within a 6 months. And academic and research publication level, withdrawal manuscript. Level 40 to 60% in a thesis and dissertation level, debarred from submitting revised script for a period of 1 year. And academic and research publication, withdrawal manuscript, denied rights to 1 annual increment, not to be allowed to be a supervisor to any master's, MPhil, PhD students, scholar for a period of 2 years. In a level 3, about 60%. In thesis and dissertation level, student registration for that program shall be cancelled. In academic and research publications, withdrawal manuscript, denied rights to 2 successive annual increment, not be allowed to be supervisor or any master, MPhil, PhD scholar in a period of 3 years. So these are the penalty provisions in the policy. UGC policy on self plagiarism on 20th April 2020. मैंने आपको आगे बताया कि सेल्फ प्लेगरिज्म के संदर्भ में भी ये कोविड के टाइम पे 20th अप्रैल 2020 को यूजीसी ने एक सर्कुलर किया. ये उसका है, रिप्रोडक्शन इन ए पार्ट और whole of one's own previously published work without adequate citations and a proper acknowledgement and claiming most recent work as a new and original for new academic advantage amount to text recycling, also known as a self-plagiarism, and it is not acceptable. Text recycling, self-plagiarism includes republishing the same paper already published elsewhere, publishing smaller work from a longer and previous, reusing data already used in published work, communicated for publications, breaking up a longer and larger study into smaller section and publishing them altogether in new work. तो जब भी आप अपना कोई भी जो वर्क प्रीवियसली पब्लिश्ड हुआ है उनको आप रीप्रोड्यूस करते हो या रीयूज करते हो तो कहीं ना कहीं सेल्फ प्लेगरिज्म के दायरे में आता है. Fair use provisions in Indian Copyright Act, Section 52(1)(ai) of the Copyright Act 1957. The statutory framework for fair dealing in India follows a common law. As noted earlier, does not define fair dealing as per the legal provision for fair dealing provides that the following acts shall not be constitute an infringement of copyright, namely of fair dealing with literacy, dramatic, musical, artistic work of the purpose of research or a private study, criticism or review, whether of the work or not any other work, of fair dealing with the literacy, literary, dramatic, musical or artistic work for the purpose of reporting current events in a newspaper, magazine or similar periodicals, or by broadcast in a cinematograph films by means of a photographs. यहाँ मैंने फेयर यूज के संदर्भ में एक केस हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फोटोकॉपी शॉप वर्सेस पब्लिशर्स, उनका मैंने एक एग्जांपल देने का अप्रोच किया है. ये मैंने
गूगल से सर्च किया था और ये हिंदुस्तान टाइम का एक आर्टिकल से वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सो जो उनको उनको बुक्स में से जेरोक्स करने के लिए जो बुक्स दिए जा मतलब जो कंटेंट दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं बार जेरोक्स हो रहा था, तो पब्लिशर ने केस किया उनकी कंटेंट के रिगार्डिंग कि ये कॉपीराइटेड है। तो तब एज ए वन टाइम जो वो रामेश्वरी फोटो कॉपीज जो जो सर्विस थी उनको बैन कर दिया गया था इन 2000 नवंबर में उनको बैन कर दिया था कोर्ट में। फिर ये केस चला, दोनों पार्टी आर्ग्यूमेंट अपने ओर से एविडेंस सबमिट करते रहे। इन कंटिन्यूशन वो जब फाइनलाइज हुआ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स पैक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा था इज पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स, पार्ट ऑफ द लर्निंग, उनको कोर्स पैक के संदर्भ में उनके अभ्यासक्रम के संदर्भ में ये जेरोक्सिंग के लिए ये कंटेंट दिया जा रहा था। तो उनका पर्पस था उनको टीचिंग ओनली लर्निंग, कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं था। तो ये केस में से इसको विड्रॉल हो गया और जो ये केस है जो सारे पब्लिशर्स को हाई कोर्ट ने भी बताया कि मतलब जो जो कोर्ट थी कंसर्न कोर्ट ने बताया कि पब्लिशर्स को कि ये केस मतलब जो बुक्स के सॉफ्ट के संदर्भ में था वो पब्लिशर जो जितने भी पब्लिशर्स हैं वो इनके सामने हार गए, उनके सामने ये केस निकल गया। तो ये है कि अगर हम हमारा एस्पेक्ट हमारा पर्पस कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं, हमारा पर्पस सोसाइटी के बेनिफिट्स में है और हम उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली साइटेशन दे रहे हैं, उनका जो भी वर्क है हमने जो भी कुछ लिया, जैसे मैंने भी ये कुछ केसेस के संदर्भ में कुछ डिटेल मैंने ऑनलाइन ली, मैंने जो भी कंटेंट ऑनलाइन लिया मेरा पर्पस ओनली हम एज वेल एज मी एज वेल एज यू ऑल आर, हम जो एकेडमिक फील्ड में है हम सभी भी इससे अवेयर उसके बारे में जाने कि अगर हम ये कंटेंट को हम रीयूज कर रहे हैं हमको उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना जरूरी है। उसको जो इंटेलेक्चुअल ऑथर है जो इसका मेन सोर्स है उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। और हमारा पर्पस ओनली एंड ओनली एकेडमिक पर्पस है, रिसर्च पर्पस है, या सोसाइटी को या हमारी कम्युनिटी को अवेयर करने के पर्पस में है और हम उसको प्रॉपर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये प्लेगरिज्म के दायरे में कहीं ना कहीं नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हमको हमारे संदर्भ में, हमारे रिसर्च के संदर्भ में, हमारे एकेडमिक के संदर्भ में हमको बतानी जरूरी है। ये कुछ केसेस के संदर्भ में भी मैंने यहाँ बताया है जो एल्जेवियर के संदर्भ में, और यहाँ पे मैंने ये उसका रेफरेंस भी प्रॉपर द हिंदू पेपर में से मैंने लिया है और ये मैंने लॉग एक्सेस किया था नवंबर 3 को 2019 में। ये डिटेल भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये कंटेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंटेंट मैंने जो कोर्स वर्क आगे भी हुए ऑनलाइन, जो कोर्स वर्क मैं आपको बता रहा हूँ जो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कोर्स वर्क हुए, जो नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में हुए, जो आईआईटीई में भी जो रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, जो सोशल साइंस का भी रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, जो कॉमर्स का भी रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है, तो ये सभी जगह पे मेरा ये कंटेंट यूज हो रहा है। तो एज ए एकेडमिशियंस, एज ए लाइब्रेरियंस, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मेरा कंटेंट, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब मैं प्लेगरिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं जब इथिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी ये बताना जरूरी है कि ये वही कंटेंट है, ये वही सिमिलरिटी थिंग है जो, पर मेरा माय पर्पस इज ओनली कि आपको अवेयर करना है, आपको बताना है हमारे, और मुझे खुद को भी इससे मतलब इसके बारे में जानना है कि अगर हम कोई भी कंटेंट जो पब्लिकली अवेलेबल है, अवेलेबल इन अ पब्लिकली वेबसाइट्स, इन ए पब्लिकली फॉर्मेट, पब्लिकली मीडियम्स हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना है, उनको प्रॉपरली जस्टिफाई करना है, उनको प्रॉपरली क्रेडिट देना है। तो ये सारे रिसोर्सेस हैं। कुछ चीज़ें मैंने मनोज कुमार सर जो है जो प्लेगरिज्म, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। शारदा प्रकाश जी है जो उरकुंड के दिल्ली के जो हेड है, उनकी पीपीटी में से कुछ कंटेंट मैंने लिया था, वो भी मेंशन किया है।
इंडिया टुडे के जो आर्टिकल्स थे वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। इन द एंड हम सबको हमारा टीचिंग, लर्निंग एवं रिसर्च का जो भी काम कर रहे हैं वो हॉनेस्टली करना है, या हमारे अंडर में जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनसे करवाना है। सो मेरा सेशंस मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट द डायनेमिक डायरेक्टर of HRDC, Dr. Jagdish Joshi sir, and their entire team to introduce a ICT-based initiative for the faculty members, for the teaching community, for the researchers in the era of COVID-19 pandemic. Once again, thank you.